Okay, good morning again. So yeah, we're live on Instagram and Facebook. हाँ, सो महाराष्ट्र से एक ग्रुप है, उन्होंने कांटेक्ट किया है. एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स का ग्रुप है महाराष्ट्र में, एंड दे हैव ऑल कांटेक्टेड मी. सो मिस्टर उमेश शिंदे, मिस्टर अनिकेत, दे आर ऑल देयर, एंड या वी आर वेटिंग फॉर देम ऑल टू जॉइन अस नाउ. हाय ऋतिक, हाय हृदय, हे कार्तिक. Oh my god, I thought you guys would all be in college. Hello Ritin sir. Yeah, we are waiting for Mr. Umesh and Mr. Aniket Suryavanshi is also here. Hello, hi, good morning. Okay, इनको कैसे join करेंगे? How do we add someone in the call? Um, yes, please join. Yes, Mr. Aniket, please join the call. I think आपको करना पड़ेगा वहाँ से. I am not sure how if I can invite you. So as many of you already know, we talk a lot about ankylosing spondylitis. So that's the disease I'm trying to manage for quite some time now. It's a disease that typically attacks people between the ages of 25 to 40. So nowadays we are seeing patients which are much younger, like 16, 17, 18 साल के लोगों को भी ankylosing spondylitis होता है. But yeah, it hit me in my very early 20s, like when I was 20, 21, 22 maybe. और तब से काफ़ी सारा मतलब स्ट्रगल और एक्सपीरियंस हुआ डिजीज़ के साथ. सो पीपल कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम ऑल ओवर. ऑफ कोर्स लाइव हूँ. ज्वाइन कैसे होना है? अनिकेत, आई थिंक आपको मेरे वीडियो पे राइट क्लिक या ऐसा कुछ करना पड़ेगा और उसमें होगा रिक्वेस्ट टू ज्वाइन. या तो आप इंस्टाग्राम पे अगर आ सकते हो तो इंस्टाग्राम पे भी है, या फेसबुक में आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिक्वेस्ट टू ज्वाइन. कैन नॉट लीव. आप एफबी से लाइव है, कैसे ज्वाइन हो सकते हैं? ओके, नो दिस इज स्टिल ऑन. ओके, मैंने वो गूगल पे सर्च किया था तो ऐसे ही बता रहा है कि आपको मतलब जो शेयर, या व्हाई नॉट शेयर द ग्रुप. हाय साक्षी. हाँ अनिकेत, आपको वीडियो में ऐसा दिखाएगा कि आप मतलब मेरे वीडियो पे के रिक्वेस्ट टू जॉइन दिस वीडियो, दिस लाइव स्ट्रीम. हाय भव्या. Yeah, we're just waiting for some people to join the video. Just bear with us. We're all a bit new to this. I haven't done a Facebook live before, I guess. So yeah, I have a challenge of my own. But if anyone can tell us कैसे कर सकते हैं, मतलब किसी को अगर हमारे वीडियो में ज्वाइन करना है तो. अनिकेत, आई थिंक आप वीडियो पे ही अगर क्लिक करेंगे ना तो उसमें आपको ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट टू ज्वाइन. support me. Yeah, many other people from that WhatsApp group are also joining in. So yeah,
there's nothing much happening. It'll be a very technical discussion about generally avoiding disease, not just with ankylosing spondylitis. So, yeah. Hi Tarun, long time no see, champ. Hey Shaunak. Hi Tarun. So yeah, I mean somebody from Maharashtra contacted me, and there is a big group of ankylosing spondylitis patients. So they wanted to talk about routine, etc. And that's the same thing I tell everyone that मतलब routine जैसा exactly कुछ नहीं है. I eat when I'm hungry more or less, but हाँ. Ankylosing spondylitis is a big thing. We know that somebody from Agra visited me. He was an 18, 19-year-old boy, and yeah, he has trouble walking straight. So मतलब काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन काफ़ी यंग एज में काफ़ी लोगों को ये अफेक्ट करता है, एंड इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज एज फार एज माय एक्सपीरियंस गोज. ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई कीप रिपीटिंग दैट. Hello Vijay sir, hi. So can anyone help with this? कि अनिकेत wants me to join. अनिकेत आपके पास Instagram है क्या? किसी और को भी अगर कोई क्वेश्चंस है स्पेसिफिकली विथ एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो आप चैट भी कर सकते हैं, या आप लाइव वीडियो को भी ज्वाइन कर सकते हैं. Yeah, Mr. Umesh and Mr. Aniket are having problems. Is there anybody else here? नहीं सर, मैं Instagram नहीं यूज़ करता. नो प्रॉब्लम अनिकेत. पता नहीं, तो आपको अगर क्वेश्चन है तो आप चैट में या तो फिर टाइप कर लीजिए, या तो आप गूगल पे देख लीजिए कि कैसे किसी के लाइव वीडियो को ज्वाइन करते हैं. Can I invite someone to join my Facebook live? विजय चौबे, क्या आप भी महाराष्ट्र से हैं? Tap at the bottom to invite friends or groups. Tap at the bottom to invite friends or groups. But bottom where? To invite friends or groups. Stream settings, viewing. That's all okay. Okay. Start screen. Stream health. Polls help. This is very interesting. Oh, okay. Aniket Suryavanshi. Suryavanshi, yeah. Oops, no, then again I'll have to leave page. Yeah, I have no idea how to do this. विजय जी, क्या आप भी वो एएस ग्रुप में से है क्या? या ओके. हाय हृदय. ओके, तो फिर एक एक करके आप लोग भी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं. दैट्स परफेक्टली ओके. Oh, thank God. Yeah, we have somebody. Hello. कैसे हैं आप? ठीक है सर. आपको भी मतलब एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है क्या, आपको या फैमिली में किसी को? नहीं, मुझे अकेले में. अच्छा, आपको है. तो फिर अभी सर आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? कैसा पेन है, क्या है उसका मतलब? आपको कोई क्वेश्चंस है क्या? मुझे चलने में तकलीफ आ रही है अभी अभी, मतलब 2-3 साल से. हाँ करेक्ट. ओके, आप कितना चल पाते हैं दिन में?
अभी वॉक करता हूँ, कभी नहीं हो पा रहा है, कभी होता है। जब होता है तो मैं कम से कम 4 किलोमीटर चलता हूँ। 4 किलोमीटर मतलब आधा पौना घंटा जैसा। जी जी। हाँ, परफेक्ट। ओके, तो खाने में आप क्या मतलब कुक्ड फूड वगैरह खाते हैं क्या? प्रोसेस्ड फूड ही खाते हैं क्या अनप्रोसेस्ड कुछ खाते हैं आप? मैं कुक वाला ही खाता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर तला हुआ दाल लेता हूँ। अच्छा, और हाँ। गेहूं की या गेहूं की रोटी वगैरह बंद किया है मैंने। मैदा अच्छा, वगैरह नहीं ठीक। खाता है। हाँ, हम्म। मतलब जो खाना अच्छे से चबाना पड़ता है वो आप कितना खाते? जैसे लाइक कल के दिन में देखा जाए तो आपने जो चबाना पड़े वो खाना कौन सा खाया आपने? हाय दीपक। ज्वारी की रोटी। रोटी को तो चबाना नहीं पड़ता ना, रोटी तो मतलब पका हुआ होता है, तो उसको तो जैसे आप अगर सेब से हाँ या हाँ। किसी से कंपेयर करेंगे या बादाम से कंपेयर करेंगे तो बादाम से तो आपको कम ही चबाना पड़ता है रोटी। जी कोई भी जी। फल है, सब्जी है, जैसे ये है तो ये दूधी है, तो जैसे ये दूधी को अगर खा रहे हैं तो दूधी को चबाने से तो रोटी को कम ही चबाना पड़ता है ना। जी 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 जी। हाँ, तो फिर ऐसा आपने तो नहीं चबाना खा पड़े पाया मैं वैसा अभी। क्या खाया? नहीं खाया ऐसा तो कल। परसों कब खाया कि आपको कुछ चबाना पड़े? क्योंकि अगर आप चबा नहीं रहे तो आपको वो खाना हजम नहीं हो रहा, और इसका मतलब कि वो खाना आपको जहर बन रहा है आपको। तो आपने चबाना पड़े ऐसा क्या हम्म। खाया लास्ट? आपको कब याद है कि कुछ मतलब आपने चबाने वाला खाया हो? मूंग खाता हूँ, तिल खाता हूँ, अपना ये भी खाता हूँ। अ, क्या बोलते हैं उसको? तिल अच्छा है, हाँ। तिल अ, आप मतलब सेक के खाते हैं या कच्चा खाते हैं? कच्चा कच्चा। हाँ, बस सही है। हाँ, तो तिल आप दिन में कितनी बार खाते होंगे? सुबह सुबह खाता हूँ तिल और जवस। हाँ, तो जवस। मतलब हो क्या रहा है कि अगर आप, हाँ। जवस तिल और ड्राई फ्रूट में अ, बादाम ये वगैरह खाता हूँ सुबह सुबह। बाद हाँ, में जो ठीक है। रेगुलर है वही खाना खाता हाँ, तो फिर मतलब हो क्या रहा है कि आपका मतलब 90% खाना आप जो खा रहे हो वो ऐसा है कि जिसको चबाना ही नहीं पड़ता खाद। हूँ। जी जी। प्लस आप जूस वगैरह पीते हैं, दूध जूस ये सब पीते हैं आप? दूध लेता हूँ मैं सुबह। है ना? हाँ, तो उसमें भी आपको चबाना नहीं पड़ता बिल्कुल। हाँ दाल हाँ। चावल खाते हैं? दाल चावल नहीं, कभी कभी खाता हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसमें भी वो फिर आप सब्जी पका कर खाते हैं आप? हाँ जी। अ, कितना मतलब हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, रोज कैसा? कैसा है, अभी तो गांव में आया हूँ भाई। जैसा हाँ, अवेलेबल होता है उसके हिसाब से खा लेता हूँ। पर मतलब रोज खाने में पका हुआ सब्जी तो रोज होता है। हाँ हाँ जी। रोटी के साथ क्या खाते हैं आप? रोटी के साथ पका हुआ सब्जी ही रहता है समझो। हाँ, हाँ, तो क्या, टोमेटो रहेगा, कोई बटाटा रहेगा, या हाँ, फिर दौड़ हाँ, का, ऐसा कुछ घरेलू जो सब्जी आता है वही रहता है। हाँ, लोकल सब्जी, हाँ। करेले की भाजी, लोकल सब्जी जो भी है। हाँ, तो फिर सर अब मतलब वही है ना कि हम लोग सालों से, बचपन से गलत खाना खा रहे हैं। एक तो वो खाने को चबाना नहीं पड़ता, तो जो खाना आप चबाते नहीं है वो हजम नहीं होगा। दूसरा, जी उसको हम जी। गरम तेल में बनाते हैं। मतलब आप पूरी देख लो या दाल देख लो, तो दाल में वो तेल का बघार होता है, फिर सब्जी बनाते हैं उसमें तेल का बघार होता है। सो हम जो भी खाना खाते हाँ हैं, हाँ। एक तो वो नरम होता है, मतलब चबाने का नहीं होता। दूसरा, वो गरम तेल में बनता है, और गरम तेल जो होता है ना उससे मतलब एक पूरा साइकिल है, वो पूरा साइकिल मतलब मेरे काफी दूसरे वीडियोस में मैंने समझाया है, तो उससे एंकलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अब आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, वो कभी ठीक नहीं होने वाला एंकलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसलिए आपको ओके। अपना जो गलत लाइफस्टाइल है उसको सही करना पड़ेगा। अगर हम चलते नहीं है, भागते नहीं है, कसरत नहीं करते, रोज दिन रात गलत खाना खाते हैं, तो बीमारी होना गारंटीड है। सो आप कितना मतलब ओके। चेंज कर पाते हैं? आपको जितना पेन होगा, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, तब आप चेंज करेंगे कि अभी आप चेंज करेंगे? क्योंकि इसका दवाई है, क्योंकि जैसे बायोलॉजिक्स का इंजेक्शन लेंगे तो 10,000 रुपए का एक इंजेक्शन पड़ेगा आपको। फिर सर्जरी जी जी। वगैरह करवाएंगे, स्पाइन का सर्जरी, तो वो जिंदगी भर चलता रहेगा, वो एक सर्जरी से काम होने ही नहीं वाला। तो आपके हम्म। पास या तो मतलब लाखों करोड़ों रुपया होना चाहिए,
और या तो आपका, और जो भी डैमेज हो गया वो कभी ठीक नहीं होगा। मतलब मेरे भी बैक में जो थोड़ा पार्ट मुड़ गया था वो कभी सीधा नहीं होगा, बट जो पेन है वो मैंने काफी कंट्रोल कर लिया है। सो आपकी तबीयत कितनी खराब होगी उसके बाद आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे उस पर डिपेंड करता है। ओके। हाँ, ये तो अभी आपको से ही हफ्ते में, मतलब। हाँ हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा देखा जाए तो पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, और पीने में पानी के सिवा कुछ नहीं पीना चाहिए हफ्ते में कम से कम 5 दिन। मतलब आप, अब चबाना पड़ता है, जो आप खाना चबा नहीं रहे वो आप खाना खा नहीं रहे, जैसे ये दूधी है, फिर देखा जाए तो और कुछ भी खाना आप खा सकते हो आप, वरना वो ग्रुप में भी पूछ सकते हो, जैसे ये पालक है, सब खत्म हो गया मोस्टली, पर हाँ पालक वगैरह है, दूधी है, आप कोई भी सब्जी मार्केट में से तकरीबन कोई भी, बैंगन है, भिंडी है, ये सारी सब्जियां सारे फल सीधा धोकर खा सकते हैं, तरबूज भी सीधा धोकर खा सकते हैं। तो इसको हम पकाते ओके। हैं तो इससे वो एक जहर बन जाता है जो हमको फिर बीमारियां देता है। तो आप मतलब हो सके उतना धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू कीजिए, फ्रूट चेंज ज्यादा करना खाइए, पड़ेगा। सब्जी ज्यादा खाइए, और धीरे धीरे मतलब ठीक हो जाएगा पेन। ओके ओके। है ना? आपको और कोई क्वेश्चन है तो पूछ ओके। सकते हैं। नहीं, और कोई नहीं सर। यही या ओके, मतलब थैंक यू इससे वेरी क्या मच। है, हाँ, कैसे बाहर निकल सकते हैं, यही है पूछने का था। निकल सकते हैं हाँ, पर हमारा जो लाइफस्टाइल होता है ना, जो हमको घर से, जो जिन लोग को अभी तक बीमारी नहीं हुई है उन लोग सबको वो बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन जब बीमार होंगे तब सब करेंगे। सो मतलब जी भगवान की जी। दया से हम पहले बीमार हो गए हैं, सो हम पहले ठीक हो गए। बाकी सब जब मतलब उनकी उम्र बढ़ जाएगी तब बीमार होंगे, और तब शायद वो ठीक भी नहीं हो पाएंगे। सो इससे मतलब आपको हम्म। दुखी नहीं होना है, हिम्मत होना है कि अच्छा हुआ है कि मेरे को ये जो भी प्रॉब्लम हुआ वो यंग एज में हो गया, ताकि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। जी बिल्कुल सर। है ना सर? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके। थैंक यू सर। हाँ। Mayank, do you want to? Okay. Does anybody else want to come? Many people have many questions. Sorry. So, Hruday, Mayank. Okay, Mayank or Hruday. Let's see. Hruday. Aniket has a question. Hello, Hruday Hi, ji. sir. Hello. Hi. How are you? I'm fine, sir. How are you? I'm very well. Thank you for asking. Thank you so much. आपको कोई questions है? आपको भी? हाँ जी, आपको भी स्पॉन्डिलाइटिस है क्या? 4 साल से एएस है, बट अभी क्या हुआ है इन आपकी एज दिस क्या है? 24। ओ माय गॉड, हाँ तो मतलब मुझे भी इसी एज पे हुआ था। अच्छा अच्छा। बट हाँ जी, अभी क्या हाँ हुआ प्लीज। कि लेफ्ट हिप फ्यूज हुआ है, मतलब चलने में दिक्कत होती है। जो अपना पोस्चर होता है ना, बॉडी पोस्चर, वो थोड़ा फॉरवर्डेड हो गया है, तो करेक्ट, अभी। मेरे को भी लेफ्ट हिप में ही लोअर वर्टेब्रे फ्यूज, मतलब हर्निएट हुआ है, इतना फ्यू मतलब हर्निएशन, मतलब हाँ वही हुआ है, करेक्ट। हाँ हाँ, और चलने में बहुत मतलब दिक्कत तो बहुत आती है, लेकिन थोड़ा चलना तो भी दम घुटना चालू होता है ऐसे। करेक्ट, हाँ तो हाँ, बहुत पेन होता है। हाँ पेन होता है, राइट। तो अभी तो हाँ। फिलहाल डॉक्टर चालू है, बट इतना रिस्पांस नहीं है चालू है। क्या गुड है, दे रहे हैं अच्छा आपको है। मेडिसिन में? क्या दे रहे हैं? सल्फर सालाजीन दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? मेडिसिन में मुझे एक पेन किलर है, ठीक है। सेकेंड, एक हाँ इन्फ्लामेशन होना नहीं इसके लिए, एक स्वेलिंग नहीं होना चाहिए उसके लिए, एंड एक हाँ एसिडिटी नहीं होना चाहिए उसके लिए, एंड एक हाँ, उससे है वो एसिडिटी जो। और, हाँ, एंड हाँ एक है वो जो अपना ग्लूकोमाइन खत्म हो गया है ना, वो बढ़ाने के लिए शायद हाँ एक। हाँ, हाँ, वो सही। एसिडिटी का ही मेन प्रॉब्लम है। वो लंबे टाइम तक हम ये जो गरम तेल में पका हुआ खाना खाते हैं ना, उससे इन्फ्लेमेशन हो जाता है इंटेस्टाइन्स में, और उससे ओके फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, इससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली प्रॉब्लम वो एसिडिटी का ही है, बेसिकली लॉन्ग टर्म ओके एसिडिटी, कि हमको सालों से एसिडिटी हमको पता नहीं है, लेकिन वो माइल्ड एसिडिटी कॉन्स्टेंटली स्टमक में रहता है,
क्योंकि हम जो पका हुआ खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए, वो बैक्टीरिया एज अ बाय प्रोडक्ट एसिड बनाते हैं। तो ओके। इसलिए वो हमारे पेट में प्रॉब्लम रहता है। इसलिए डाइट चेंज करने से हमारा जो गट का माइक्रोबायोम होता है, मतलब गट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। वो ये खाना हजम करने के लिए बैक्टीरिया आ जाते हैं, और वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड नहीं, अल्कलाइन बाय प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं। सो उससे इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में रहता है। एक्चुअली लॉजिक यही है, आपकी बात सही है। तो फिर आपको क्या क्वेश्चन है? आप भी यही करते हैं क्या? आप भी मतलब नहीं चबाने वाला पका हुआ बहुत खाते हैं? हाँ, पका हुआ ही खाते हैं। पका हुआ ही पहले। खाते हैं तो मतलब आपको देखना है कि आपका कितना डैमेज होता है, आपका कितना पोस्चर खराब होता है, उसके बाद आपको चेंज होना है। आपको कितना पेन होता है। जैसे काफी लोगों को मैंने तो काफी वीडियोस में बताया, मैं सुबह बेड से मतलब उठने के बाद मुझे बाथरूम तक जाने में ऑलमोस्ट पौना घंटा लगता था, और मुझे वो रेंगते हुए जाना पड़ता था, क्रॉल करके। कई बार मेरे पैंट में मुझे मतलब पैंट खराब हो जाती थी मेरी। सो मेरी हालत तो इतना है। बहुत ही बुरी थी, मतलब मैं चल ही नहीं पा रहा था। सो उस उतना तक खराब होगा, फिर आप ठीक करेंगे, क्योंकि फिर डिफिकल्ट भी बहुत होगा। एक एक कदम चलना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन बहुत करना पड़ेगा। सो अभी राइट। कम चेंजेस करके आप ठीक हो सकते हैं, या तो डैमेज ज्यादा होने पर बाद में। पर ये डिजीज ठीक कभी नहीं होगा। आपको डॉक्टर ने भी बताया होगा कि ये कभी ठीक नहीं होने वाला, मतलब आगे चल के आपको सर्जरी वगैरह वही सब करवाना पड़ेगा। राइट, राइट, राइट। और तो मतलब स्पाइन का कैसा है? सर्जरी सक्सेस बहुत कम होता है। स्पाइन का सर्जरी सक्सेस इज बहुत बहुत लो होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, रिपीटेडली करते रहना पड़ता है, और तो भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो कैसा मतलब इसमें चेंजेस कैसे ला सकते हैं हाँ, Tarun, yes, the answer to your question is yes. Bhavya, I don't know. Earlier, I had a name for my diet. It was called Fruitarianism, but now it has evolved beyond that. Fruitarianism, as in fruits and seeds and nuts. Okay. Um, हाँ, तो रीता जी, आप चेंजेस कैसे ला सकते हैं? आप थोड़ा थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं। जैसे आप पहले तो रोटी और चावल एकदम कम कर दीजिए। रोटी मतलब खाने में एक ही रोटी खाना, चावल भी कम खाना, और दाल और सब्जी ज्यादा खाना। फिर सेकेंड, आप फ्रूट्स खाना शुरू कर सकते हैं। जैसे सुबह उठते ही आपको थोड़ा बहुत केला, एप्पल, कुछ ना कुछ खा लेना है। और किसी भी चीज को काटना मत, मतलब एप्पल है तो उसको काटना मत, आप उसको अच्छे से धो के खा लेना। किसी को पील मत करना, किसी को काटना मत। सो लोग जो बोलते हैं ना रॉ डाइट, ये रॉ नहीं है, सिर्फ ये अनप्रोसेस्ड डाइट है। क्योंकि अगर मैं इस चीज के छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूं तो मेरे जो आगे वाले दांत है वो यूज ही नहीं होगा। सो सारे दांत यूज नहीं होंगे तो इनफ सैलिवेशन नहीं होगा, तो डाइजेशन नहीं होगा। सो चीजों को पील करना, चीजों को कट करना, बॉईल करना, स्प्राउट करना, जो भी प्रोसेसेस होते हैं धोने के सिवा, जो भी प्रोसेस होता है वो सारे प्रोसेसेस आप धीरे धीरे कम करके वो खाना। जैसे आप खाना खाने के पहले वापस थोड़ा सैलेड खाइए। पालक है, मेथी है, नीम है, तुलसी, पुदीना, वॉटेवर जो भी पत्ते होते हैं वो सब खाइए। ड्राई फ्रूट हो सके अपना आप दिन भर खाते रहिए, भले आपको भूख नहीं लगी तो भी आप ड्राई फ्रूट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो खाते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पका हुआ खाना है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लगेगा। ओके, ओके। और उससे आपको अपने आप एनर्जी और स्फूर्ति भी ज्यादा रहेगी, तो आपका ऑटोमेटिकली वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, ये सब ज्यादा होने लगेगा। तो उससे आपको फायदा लगने लगेगा, तो फिर आप अपने आप और चेंजेस करने लगेंगे। सो शुरू में तो आपको छोटा छोटा चेंजेस करना पड़ेगा। दूध वगैरह कम के बराबर कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जूसेस वगैरह बंद या कम के बराबर कर दीजिए। सो जो भी प्रोसेस खाना होता है वो धीरे धीरे कम कीजिए। और जो अनप्रोसेस्ड होता है, जैसे ये अनप्रोसेस्ड है, तो इसको ज्यादा खाना शुरू कीजिए। दैट इज द सिंपल थिंग, कि धीरे धीरे उसको हमको वो गरम तेल में पका हुआ खाना बंद करना है। ओके, थैंक यू। और जिसको हमको चबाना नहीं पड़ता, जैसे आप आलू को आपने बॉईल कर दिया तो फिर आपको आलू चबाना नहीं पड़ेगा। मैं तो आलू नहीं खाता ऑफ कोर्स, पर एग्जाम्पल इज वही कि जो भी चीज आप कच्ची खा सकते हैं आप उसको कच्चा ही खाइए। पपैया भी है तो पपैया का छिलका नहीं निकालना है, उसका सिर्फ बीज निकालना है। और उसका पीसेस छोटा छोटा पीस नहीं करना है, बड़ा बड़ा पीस लेकर उसको हो सके उतना दांत से काट काट के उसको खाना है। ओके, राइट, सो मोर च्यूइंग, लेस कुकिंग, रियली। ओके। थैंक यू, राइट, एंड यू कैन बी इन टच विथ मी। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। ओके, अनिकेत अनिकेत का क्वेश्चन है फेसबुक पे। सर, मैं एज 22, मैं चल नहीं पाता क्योंकि हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है।
सेम प्रॉब्लम हियर अनिकेत, डाइट क्या लेना चाहिए एएस में, और रॉ फूड डाइट से एएस को कंट्रोल किया जा सकता है? सो अनिकेत, आपका आंसर मिल गया क्या? मैंने जो अभी हृदय से बात की उससे। I'm sorry, guys. Yes, Tarun, it is leaky gut. Like basically, your gut remains inflamed constantly, so the walls become very thin because the walls are really made with fiber. Because fiber does not get digested. So जो fiber होता है वो gut के lining improve करता है, और फिर ultimately gut से leak होके fiber blood वगैरह भी में भी आ जाता है, and that helps you. That helps your brain. That helps your mood. Everything. But the opposite of that is when the walls are too thin, and that's when the bile leaks into the gut, and the immune system gets seriously offended, basically, because your immune system is controlled from your stomach, from your gut. अनिकेत का अगेन क्वेश्चन है, रॉ फूड कौन से टाइम खाना चाहिए, इसका डिटेल बताओ सर। अनिकेत, जब भूख लगे खाओ। अभी मुझे भूख लगी तो मैंने दूधी और पालक लिया, और फिर उसके थोड़ी देर पहले मैंने नारियल खाया, उसके थोड़ी देर पहले मैंने 3-4 केले खाए। सो जब भूख लगे तब खाओ, ऐसा कोई लंच डिनर ब्रेकफास्ट वो नहीं है। वो लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो सिस्टम है वो इट्स कॉल्ड द स्लेव डाइट, वो गुलामों का डाइट था। जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो जो जमींदार थे उनके पास, लेट्स से अगर मैं जमींदार हूं, मेरे पास एक बैल है, एक भैंस है, एक गाय है और एक बंदर है। अब जो गाय, भैंस और बैल है वो तीनों रूमिनेंट्स है। रूमिनेंट्स मतलब उनके मल्टीपल चेम्बर्स होते हैं, उनके स्टमक में उनके बहुत सारे पेट होते हैं। इसलिए वो खाना भी आप देखेंगे तो वो जुगाली करते हैं, खाना बाहर लाते हैं, वापस हजम करते हैं। सो उनको बैठ बैठ के चबा चबा के खाना पड़ता है, और लंबे टाइम तक फिर उनका खाना चलता रहता है। बट जैसे मंकीज होते हैं, बंदर होते हैं, हम होते हैं, तो आपने देखा होगा प्राइमेट फैमिली जो होता है, तो बंदर जो होते हैं वो पूरा दिन खाते रहते हैं और पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, पूरे दिन भागते रहते हैं। सो अगर मैं लैंडलॉर्ड हूं और अगर मेरे 3 जो जानवर है वो मेरे खेती के लिए जो मुझे चाहिए, वो तीनों जो है वो घास खा के रूमिनेंट्स है, जिनके मल्टीपल स्टमक है, और एक बंदर है, तो वो बंदर पूरे दिन काम करेगा, पूरे दिन खाएगा, तो वो मुझे नहीं चलेगा। मुझे चाहिए कि चारों एक ही टाइम पे खाए, एक ही टाइम पे काम करे। तो इसीलिए जो घास मैंने गाय, भैंस, बैल के लिए उगाई है, वो घास, घास मतलब चावल और गेहूं। सो वो घास मैं चाहूंगा कि इंसान को भी मैं खिला दूं। अब वो इंसान तो वो खा ही नहीं पाएगा, इसलिए पहले आपको उसको पीसना पड़ता है, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे मकई हो, आपको पहले पीसना पड़ता है। फिर उसको या तो तलना पड़ता है, या तो उबालना पड़ता है, या तो सेकना पड़ता है, या तो उसकी रोटी बनानी पड़ती है, वगैरह वगैरह। और फिर भी वो हजम नहीं होता ठीक से, उसके साथ घी लगाना पड़ता है, ये लगाना पड़ता है। तब जाके एक साथ हम बहुत सारा खा सकते हैं और फिर बहुत सारा काम कर सकते हैं, तो काम चलता रहेगा। सो ये हमारा लाइफस्टाइल है ही नहीं। तो जो इससे पूरा एक एग्रीकल्चर जो 10,000 साल पहले शुरू हुआ, उनसे जमींदारों को बहुत फायदा हुआ। पर जो गाय, भैंस, बैल और इंसान थे, उनको नुकसान ही हुआ है। सो आप एग्रीकल्चर, जो कमर्शियल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं फूड ग्रेन एग्रीकल्चर, उसके आप प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, तो उससे तो एक तो जंगल भी सारे खत्म हो रहे हैं, इसलिए कोरोना जैसी बीमारियां बाहर आ रही है जंगल से। एंड देर आर मेनी अदर प्रॉब्लम्स। हाय प्रसाद, लॉन्ग टाइम नो सी चैम्प। अनिकेत, जब जो भूख लगे वो खाओ, दैट्स द शॉर्ट आंसर। या एनी अदर क्वेश्चंस? दीपक, डिफिकल्ट तो है ही यार, क्योंकि 10,000 साल से कोई गलत चीज अगर लग गई है, उसके लाखों साल पहले हम लोग सही चीज खा रहे थे। बिकॉज आई डोंट नो, ह्यूमंस आर व्हाट, 200,000, 600,000, 1 मिलियन ईयर्स ओल्ड, हाफ, आई डोंट नो हाउ ओल्ड, मतलब डिफरेंस, आप कौन सी बुक पढ़ते हो। बट वी आर एटलीस्ट 250,000 ईयर्स ओल्ड। सो इंसान 2.5 लाख साल पुराना है, पिछले 10,000 साल से गलत खा रहा है, चेंज किया जा सकता है। हीर सिंह सा, राम राम सा, कैसे हैं आप? There is somebody from Rajasthan, a great artist with us here today. I think I've answered most of the questions. मस्के जी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, done. I think we are okay with that. I'll try calling Mr. Umesh one more time. Let's see. I'll try calling him from my phone. Just a second.
re-telecast of this or whatever, re-stream of this in the evening. I hope I haven't missed any questions. Nope. Okay. Okay, guys. So if you don't have any other questions, it's time to for me to go back to my brilliant palak and some brilliant dudi, and there's a whole box of dry food as well. Bye, guys. See you.